Is the screen visible to all of you? Is the screen visible to all of you? Is the screen visible? Yes, sir. Okay. 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 So in previous class, we have studied about Z transform. Okay. Just a minute. In previous class, we have studied about Z transform. And now we will go for further study of Z transform. And in Z transform, as I have told that there is a concept of ROC. So first of all, we have to know what do you mean by ROC. So ROC is region of convergence. That means the rate transform will lie in between that ROC area. So if the Z plane can be defined by this, that is real part and imaginary part, that is real part and imaginary part. Okay, so ROC will lie in between the particular area. So basically, ROC is represented by a circle, unit circle having origin at 0. Origin at 0. That means if ROC is in between this circle, that means the Z transform have values or convergence in this area. Otherwise, if Z transform has the ROC outside the circle, that means outside the circle we will get the value of the ROC. So that is region of convergence. Convergence. So your Z transform always dependent upon some foundation. That means your BTech degree. Okay? It is bounded in 4 years. That is up to 8 semester you have to study. After that you will get the graduate degree and a graduation degree. And if you want to study more, then again your masters will bounded by 4 semesters. That means after again extra 4 semester, you will get your master degree. So this is ROC, region of convergence. So as we know that some sequence or whatever the sequence has to be converted into its corresponding Z transform always have some foundation. And this foundation we have to calculate in the form of ROC. So I am giving an example. Suppose in previous class, just a minute. Okay. So in that case, that means we have calculated the corresponding Z transform of the sequences. Now we will calculate their ROCs. That means Z value of Z will be converges in which range. So we will move to the very first example that we have already done in previous class, that is x of n equal to 103 minus 1 started from this one. So this is your right hand sequence. Right hand sequence. That means left hand part is 0. There is no value in left hand. Okay. So corresponding Z transform is x plus z from the previous calculation 303 plus 2 z to the power minus 4. That is the equation or Z transform. Now, if we see the value of Z associated with each and every portion, that is minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, whatever it may be, Z का value हर एक जगह पे है instead of the first term. That means Z to the power 0. That means 0 पे.
जीरो पे, दैट मीन्स जीरो पोर्शन के अलावा ये हर एक जगह पे इसका आरओसी लाई कर रहा है, दैट इज -2 -3 -4, हर एक जगह पे इसका आरओसी लाई कर रहा है. सो आई कैन से आरओसी ऑफ द x of z is everywhere except z equal to 0, because z equal to z to the power 0 में तुम्हारा यहाँ पे z का कोई वैल्यू है ही नहीं, सो यहाँ पे आरओसी होगा ही नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द z. वही सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड इक्वेशन सीक्वेंस ले, दैट इज द सेकंड एग्जांपल व्हिच I have taken, that is x of n equal to -3 -2 -1 0 and 1. That means right hand sequence में कुछ है नहीं, only left hand sequence has some value. This is left hand sequence. So in left hand sequence क्या होगा, x of minus z is equal to 1 minus z square minus 2z cube minus 1 z minus 2 minus 3 z to the power 4. सी यहां पे भी तुम्हारा z इक्वल टू 0 है, एज वेल एज प्लस इंफिनिटी, मतलब लाइक दिस, ये खुद एक माइनस इंफिनिटी तक है, तो प्लस इंफिनिटी से यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे नो z विल बी देयर. सो आई कैन राइट, अगर हम z एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, आई कांट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. आरओसी देख के मुझे पता नहीं चलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट इंफिनिटी द z इज कन्वर्ज्ड एट ऑल द वैल्यू ऑफ z, x of z is converged at all the value of z. So ROC of x minus z is everywhere except z equal to infinity. ठीक है, दैट मीन्स दोनों को अगर हम जीरो लिखेंगे, यहां पे भी जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को जीरो लिखेंगे तो आरओसी देख के हमको पता नहीं चलेगा कि वो राइट हैंड साइड सीक्वेंस है या लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस है. सो टू मेक द डिफरेंस इसको हम थोड़ा घुमा के लिख रहे हैं कि जीरो से इंफिनिटी तक ये कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट z इक्वल टू इनफिनाइट x माइनस z हैज वैल्यू ऑफ z. सो फॉर बोथ हैंड साइड, for both hand side sequence क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, आरओसी ऑफ x of z is everywhere except z equal to 0 and z equal to infinite. Now in every equation there is a particular ROC, we will see later, because ये हो नहीं सकता कि हम एक बाउंड्री दे दे, ठीक है, कि तुम 4 साल के बाद पढ़ ही नहीं सकते हो, बीटेक रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ नहीं सकते हो, दैट इज जनरलाइज. ठीक है, नाउ इसको हम पर्टिकुलर एक रेंज तक स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आरओसी. We will discuss after completion of the property of Z transform. ठीक है, now move to the property of the Z transform. ठीक है, before going to property of the Z transform, since we are studying about ROC, we have to know the property of ROC. This is a very vital point, huh? ROC properties. Every interview, in every interview, competitive exam, 1 or 2 question you will get from ROC. ठीक है, so ROC देखो, as per the diagram, ROCs look like this. So point number 1, ROC is a ring or disc in Z plane
centered at origin। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर लेफ्ट हैंड सीक्वेंस ROC is everywhere except z equal to infinity। For right hand sequence ROC is everywhere except z equal to 0। For both hand sequence ROC is everywhere except z equal to 0 and z equal to infinity। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, ROC must be a connected region। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ROC ले रहा था, ये कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी रीजन इज कनेक्टेड। ये नहीं कि यहाँ पे एक ROC है, ठीक है, यहाँ पे एक ROC होगा और यहाँ पे एक ROC होगा। ऑल द ROCs विल बी कनेक्टेड। ठीक है। सो कनेक्टेड रीजन दैट मीन्स अ पर्टिकुलर रीजन, कनेक्टेड रीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज 6, ROC of LTI stable system contains unit circle। ठीक है। एज पर आवर calculation ROC is nothing but a unit circle। okay, this is the properties of ROC। now our main topic is Z transform, so again we will move to the Z transform, that is properties of Z transform, properties of Z transform। So now properties of Z transform, that is as I told that Z transform itself a powerful tool, because अगर ये powerful tool नहीं होता तो क्या होता, सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो सिग्नल एज पर इट्स ओन प्रॉपर्टीज बिहेव करता। But Z transform, since Z transform is a powerful tool, so it will make sure that signal will show the properties as per the property of Z transform। So basically we can say the properties itself make the Z transform as a powerful tool। Otherwise if properties will not be bounded, okay, it is your signal has to maintain the properties by hook or crook। ठीक है, ये तुम्हारा Z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज को मेंटेन करेगा ही करेगा, तभी वो हम लोग कह सकते हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है Z ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो एक्चुअली द प्रॉपर्टीज विल मेक द Z ट्रांसफॉर्म एज powerful as it will force the sequence, transform sequence to maintain its own properties like your BTech degree। ठीक है, तुम लोग अगर मैं बोलूंगा कि ठीक है अच्छा तुम लोग BTech पढ़ रहे हो, ओके इट्स ओके, you are just getting admission in the BTech curriculum and after 4 years you will get the degree, but BTech will not be effective। So to make the BTech degree an effective one or powerful one, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, you have to maintain the properties of BTech course curriculum strictly। कि तुम्हें यहाँ पे 8 सेमिस्टर्स देना है, जो डिप्लोमा से आए हैं लैटरल एंट्री के लिए 6 सेमिस्टर्स है, एंड ऑल द पेपर्स इज रिलेटेड टू टेक्निकल टर्मोलॉजीज और टेक्निकल ओरिएंटेड मैक्सिमम पेपर यू हैव टू रीड टेक्निकल बेस्ड पेपर्स। So that's why you have to maintain the property, and after each and every semester you have to qualify a
examination, that is semester exam. So these properties of graduation, BTech graduation, you have to follow. These curriculum strictly followed by the students, so that the BTech degree will become a powerful tool. So properties will play a very active role for a sequence. If the sequence will satisfy, or if the sequence will follow the properties of Z transform, then only that sequence or that signals can be Z transform. Until the signal of system will not be Z transform. Okay, so properties will play the vital role. So first properties among the properties of Z transform is linearity property. Linearity property. प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है ये अच्छे से ध्यान से देखना, बिकॉज इन फर्दर और इन फ्यूचर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू Z ट्रांसफॉर्म without solving, by only seeing the equation you can find out the corresponding Z transform as well as inverse of Z transform, that is x of Z is given, you have to find out x of n. You can simply find it out by just using its properties. Okay, so linearity property, according to linearity property, it says that if x1z is the Z transform of x1 of n, is the Z transform of x1n, and x2z is the Z transform of x2n, then Z transform of ax1n plus bx2n is equal to individual Z transform of x1z plus x2z. ठीक है, so I have to prove this. That is multiplication factor. A and B is the multiplication factor. So now I have to prove this. So suppose x1n is going through a system A and it will given A1 ax1, ठीक है, and x2n is going through a system B which will give bx2n. So now they both will be added. So it will give ax1n plus bx2n. Okay, now combiningly this is another signal. Again this signal is fed to a Z transformer. So it will give you Z transform of A x1n plus B x2n. ये हो गया पहला कंडीशन, केस 1. नाउ केस 2 क्या है? केस 2 that is x1n is going through a system A which will give you ax1n, and after this it will be through a Z transform. So it will give a x1z because a is the constant term. Again x2n is fed to a system B which will give bx2n, and after this Z transform will be there. So bx2n Z. Now they will be added, and which will give you a x1z plus b x2z. Okay, so now this is a signal. So I have to prove that we have to prove case 1 equal to case 2. So now move to the case 1. Okay, case 1. केस 1 में मेरा इनपुट क्या है? ax1n प्लस bx2n, ये मेरा इनपुट सिग्नल है। नाउ इसको हम क्या कर रहे हैं?
Z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, Z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, so it will give you Z transform of AX1n plus BX2n. Now we will find the value of this. So uh, as per the equation or formula AX1n plus BX2n, okay, this is resembles with x of n. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस पार्ट एंटायर पार्ट, दिस एंटायर पार्ट will be there, so ax1n plus bx2n into z to the power minus n. That is the normal formula of x z transform. So now elaborate this. If we illustrate this, we will find that summation of minus infinity to plus infinity ax1n z to the power minus n, ये एक हो जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी bx2n z to the power minus n. Can I write this? Yes or no? Can I write this? Yes or no? Can I write this? Can I write this? Yes or no? देख लो, पहले क्वेश्चन को देख लो. Can I write this? Yes or no? Yes, sir. Okay. So now देखो, just observe this one, ax1n z to the power minus n. That is, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे x of n के लिए, तो xn into z to the power minus n, that will give you z transform x of z. So यहाँ पे ax1 है, so a will be outside. इसको हम थोड़ा और एक स्टेप ले लेते हैं, x1n z to the power minus n प्लस यहाँ पे सेम चीज करते हैं, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी bx2n z to the power minus n. So now its corresponding z transform is a x1 of z plus b x2 of z. So ये हो गया केस 1, a x1n प्लस b x2, ये हो गया केस 1, क्वेश्चन 1. ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 is nothing but case 2. See, this one is equal to this 2, so this is proved. ठीक है, so that is the proof of the first property, that is linearity. Next is example 2 or properties number 2, that is time shift. Time shift or translation. Translation. So time shift और translation. तो time shift किसमें होगा? और in continuous signal. But Z transform is applicable for discrete one. So discrete में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा प्लेन जो होता है Z प्लेन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, एंड Z प्लेन इज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, टाइम टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइम शिफ्टिंग आई विल से ट्रांसलेशन. अगर क्वेश्चन में पूछेगा ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, डोंट बी पैनिक, दैट ट्रांसलेशन इज नथिंग बट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी.
सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ x of z equal to z transform of x of n and initial condition for x of n equal to 0, that means starting 0 है initial condition में, then z transform of x of n minus m equal to z to the power minus m x of z, that is initial condition. ठीक है, 0 है तो, एंड टाइम शिफ्टिंग दैट मीन्स डिले पोर्शन या एडवांस पोर्शन और z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of z, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एडवांस कर रहे हैं इसको भी, x of n plus m, then it will become z to the power m x of z. ठीक, ये याद रखना कि ये आगे जाके लगेगा मुझे मैं जब z ट्रांसफॉर्म सॉल्व करूंगा. सो देखो यहाँ पे इसको आप प्रूफ करना है, प्रूफ. सो मैं डिले फंक्शन को ले रहा हूँ, ठीक है, डिले फंक्शन को ले रहा हूँ, दैट इज x ऑफ n माइनस m इक्वल टू z टू द पावर माइनस m x ऑफ z. ठीक है, इसको लूंगा, दैट मीन्स डिले बाय a यूनिट. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x ऑफ n है, वहां पे मेरा डिले हो रहा है एम डिले के बाद मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, x ऑफ n माइनस m. ठीक है, n माइनस m मेरा डिले आ रहा है. सो नाउ इसको अब मैं z ट्रांसफॉर्म करूंगा. सो z ऑफ x ऑफ n, सॉरी n माइनस m. नाउ इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू z टू द पावर माइनस m x ऑफ z आना चाहिए, ये आना चाहिए. अब देखते हैं ये आएगा कि नहीं. ठीक है, नाउ x ऑफ n के बदले में क्या लिखूंगा, x ऑफ n माइनस m z ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सिंपली पुट करो n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे जो पोर्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो, x ऑफ n माइनस m z इंटू n, सॉरी माइनस m z इंटू माइनस m. सिंपली यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली z के बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो फॉर्मूला में यहाँ पे पुट होगा, x ऑफ n के बदले पुट होगा और z टू द पावर माइनस m. सो नाउ इसको हम अगर इलेबोरेट करेंगे, सो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n माइनस m z टू द पावर माइनस n प्लस m माइनस m लिख सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ देखो इनफिनिट n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n माइनस m z टू द पावर माइनस n माइनस m इंटू z टू द पावर माइनस m, ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो ये जो z टू द पावर माइनस m है ये n में n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, n का कोई भी वैल्यू हो वो डिपेंडेंट नहीं है z टू द पावर माइनस m. सो z टू द पावर माइनस m को हम बाहर रख देंगे, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n माइनस m z टू द पावर माइनस n माइनस m. नाउ इसको कंपेयर करो, x ऑफ n z टू द पावर माइनस n इक्वल टू हम लिख सकते हैं x ऑफ z, लिख सकते हैं. ठीक है, तो दैट मींस x के बाद जो फंक्शन n है वो z का कोएफिशिएंट होना चाहिए, नेगेटिव कोएफिशिएंट पावर में होना चाहिए, तभी हम उसको x ऑफ z लिख सकते हैं. तो देखो यहाँ पे x का फंक्शन क्या है n माइनस m और z का नेगेटिव पावर कोएफिशिएंट क्या है n माइनस m. सो सेम होता है, इसको अगर हम l से रिप्रेजेंट करेंगे और n माइनस m इक्वल टू k अगर लिखेंगे, ठीक है,
तो इसमें हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z to the power minus m, that is also n equal to infinite to the n minus something is infinite also. K will also vary from minus infinity to plus infinity, x of k z to the power minus k. So इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, this term can be written as x of z, because इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है. So now it can be written like this, z to the power minus m x of z, that is z transform of x of n minus m. समझ में आया सबको? कहीं पे किसी का कोई डाउट, मिनिमम भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉपर्टीज ही काम आएगा तुम्हें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए. कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. एनी डाउट, यस और नो? एनी डाउट, यस और नो? एनी डाउट्स? Yes or no? No, sir. Okay. So I will proceed to the next properties. So your assignment is from this chapter or from this topic, from this lecture, you have to find out x of n plus m z to the power m x of z. You have to prove this. ठीक है? So this is your assignment. Proof. Okay. Now next properties is. सर हाँ बोलो. ये जो आप assignment दिए हैं ये किसी में अटैच है? क्या बोल रहे हो? ये जो आप असाइनमेंट दिए हैं प्रूफ करने को, हाँ, वो किसी में अटैच करना है या सिर्फ होमवर्क है? असाइनमेंट में हर एक क्लास में थोड़ा बहुत असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है. तुम लोग एक काम करोगे, Yes. मैं अभी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को. तुम लोग एक काम करोगे, जितना क्लासेस में मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको एक जगह पे A4 साइज पेपर हो या कोई भी कॉपी हो, वहां पे नोट डाउन करके वहां पे सॉल्व करो. अगर Okay. यूनिवर्सिटी ऐसा नोटिफिकेशन निकालता है कि इंटरनल असेसमेंट के थ्रू तुम लोगों का प्रमोशन कर दिया जाएगा, जो हालांकि अभी जो सिचुएशन हो रहा है, अपकमिंग सिचुएशन हो रहा है, जो रिसेंटली अनदर वेरिएंट ऑफ कोरोना दैट इज ओमिक्रॉन, इसके चलते हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से यूनिवर्सिटी वही एक नोटिफिकेशन देगा. तब तुम लोग क्या करोगे, मैं बोलूंगा कि कल या परसों के अंदर असाइनमेंट सबमिट कर दो, तो यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट. इसीलिए मैं हर एक क्लास में दे रहा हूँ ताकि एक साथ तुम लोगों को प्रेशर ना आए. और तुम लोग भी जब असाइनमेंट देता हूँ कोशिश करो एक या दो दिन के अंदर उसको सॉल्व करके वहां उस कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है, ताकि जब मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मैं एक सब्जेक्ट के बोल रहा हूँ, जब यूनिवर्सिटी ऐसा निकालेगा नोटिफिकेशन, हो सकता है बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी तुम लोगों का असाइनमेंट का प्रेशर आए, ठीक है. तो फॉर दैट पर्पस मैं हर एक क्लास में एक दो करके क्वेश्चन दे देता हूँ. यू हैव टू कलेक्ट इट इन अ कॉपी और A4 पेपर, ठीक है, वहां पे सॉल्व करके रख दो तुम लोगों के पास. जिस दिन मैं बोलूंगा असाइनमेंट सबमिट, उसी दिन डेडलाइन दे दूंगा, वो डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगा. तब ये मत बोलना सर बहुत कम टाइम है, ठीक है, बिकॉज मैं हर एक छोटा छोटा असाइनमेंट करके मैं क्वेश्चन जो तुम लोगों को दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट. ओके. Okay, sir. So now next properties is properties number 3 is
that is multiplication by an exponential sequence। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस मतलब सपोज मेरा x ऑफ n है, ठीक है, उसको मैं एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस दैट इज a टू द पावर n, तो ये हो गया x ऑफ n। सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। तो यहां पे कैसे होगा, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है इफ x of z equal to z transform of x of n, then z transform of a to the power n x of n equal to x of a inverse z। ठीक है, ये ध्यान से, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहां से तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि तुम्हारा सीक्वेंस आया ये, यहां से तुम डायरेक्ट x ऑफ n निकाल सकते हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, how we will solve this? Any idea? Any idea? Any idea from your end? Any idea from your end? ठीक, मेरा सीक्वेंस कोई भी दे, ठीक है, a टू दी पावर n, b टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस 1, a टू दी पावर n प्लस 2, मैं क्या करूंगा, पहले उसको z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला में पुट करूंगा, बाकी इलेबोरेट करते जाएंगे, वो अपने आप सॉल्व होता जाएगा। सो यहाँ पे देखो मेरा इक्वेशन क्या है, x ऑफ n a टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a टू दी पावर x ऑफ n मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, z ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो मेरा आ जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n x ऑफ n। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x ऑफ n इज इक्वल टू समेशन a टू द पावर माइनस n टू इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां पे जो है डायरेक्ट पुट करूंगा, यहाँ पे a टू द पावर n x ऑफ n, ठीक है, इनटू z टू द पावर माइनस n, डायरेक्ट पुट करूंगा। ठीक है, नाउ अब इसको रीअरेंज करूंगा, x ऑफ n को अलग करूंगा एंड a टू द पावर माइनस n z टू द पावर माइनस n करूंगा, ये लिख सकते हैं। तो देखो अगेन कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये लिखते हैं, that is x of z equal to summation of minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n। सो ये जो z ट्रांसफॉर्म x के अंदर जो फंक्शन है, इसी को अगर हम x ऑफ y लिखेंगे, z ऑफ सॉरी x ऑफ y लिखेंगे, तो इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, n ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n y टू द पावर माइनस n। इसी को अगर हम x ऑफ a z लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n a z माइनस n। सो देखो ये जो फंक्शन है, ये क्या मैंने कहा था, यहाँ का जो z है ये टोटली इधर आ जाएगा, z ट्रांसफॉर्म। तो नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है, a टू द पावर माइनस n ऑफ a टू द पावर माइनस 1 इनटू z। सो नाउ according to this
कंपैरिजन a टू द पावर माइनस वन जेड का क्या होगा, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ n इंस्टेड ऑफ z। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज a टू द पावर माइनस वन जेड टू द पावर माइनस n, यहाँ पे माइनस n होना चाहिए। सो देखो, नाउ कंपेयर दिस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करो। सो देखो, आई कैन राइट x of a to the power minus 1 z to the power minus 1, that is proved। ओके, दैट इज द फंक्शन। फंक्शन में तुम्हारा कैप्चर होना बहुत ही जरूरत है, कहां पे मैं कौन सा फंक्शन किस लिए यूज कर रहा हूं, ये तुम्हारा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। नाउ टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी नंबर 4 शायद, that is property number 4, time reversal। okay, so time reversal, so time reversal ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, so 1/t है, तो रिवर्स बिकम इनवर्स, इनवर्स रिवर्स बिकम इनवर्स। ठीक है, सो टाइम रिवर्सल कह रहा है इफ x of z equal to z or z transform of x of n, then z of, that is time reversal, x of n becomes x of minus n। okay, so z transformed will also becomes inverse, reverse become inverse, so x of z to the power minus 1, it will become minus 1। okay, so ये बोल रहा है टाइम रिवर्सल में, एंड दिस इज नोन एज इनवर्स सिस्टम, इनवर्स सिस्टम। ठीक है, सो नाउ इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ। सो मेरे पास क्या है, एक्स ऑफ एन है, आई हैव एक्स ऑफ एन, सो एक्स ऑफ एन को हम टाइम रिवर्स दे रहे हैं, दैट इज माइनस, दैट इज टाइम रिवर्स, रिवर्स। ठीक है, तो ये हो जा रहा है एक्स ऑफ माइनस एन। नाउ इसको हम अब z ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो नाउ इट विल बिकम एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन। सो एज आई टोल्ड, कोई भी इक्वेशन हो मैं क्या करूंगा, उसको z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला में पुट करूंगा, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ माइनस एन z टू द पावर, दैट इज माइनस है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में, यहाँ पे जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूंगा, एंड जो वॉट एवर इट इज रिटन आई विल राइट दिस। सो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ माइनस एन जेड टू द पावर माइनस। सो नाउ आई हैव टू मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, इस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट इट k इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, सो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k z टू द पावर k। सो देखो, ये इस फॉर्मूला के साथ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि माइनस है, सो इसको मैच कराने के लिए मैं क्या करूंगा, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी okay, k equal to minus infinity to plus infinity x of k z to the power minus 1 to the power minus k। I can write this, yes or no? Yes, sir. Okay,
तो नाउ अब इसको कंपेयर करूंगा। देखो x ऑफ n दैट इज x ऑफ k, यहाँ पे जो क्वांटिटी है दैट विल बी यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका नेगेटिव कोएफिशिएंट लेंगे x ऑफ फंक्शन में जो है। तो देखो k है तो नेगेटिव क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है फंक्शन z टू द पावर माइनस 1 है, सो आई कैन राइट डाउन x ऑफ z टू द पावर माइनस 1, सो दिस इज आल्सो प्रूव्ड। ठीक है, सो दैट इज द मेन प्रॉपर्टीज फॉर time z transform, and one more properties is there, that is convolution property, convolution which is more important। ठीक है, whenever I have discuss the chapter convolution, I told you convolution is the one of the most important tool or one of the most important process in your signal system or digital signal processing. In next semester you will get digital signal processing, so the digital signal processing and signal system, your convolution is a very vital thing, so the convolution property, so convolution property क्या कहता है, if x of z equals to z transform of x of n and h of z is z transform of h of n, then z transform of x of n h of n is equal to multiplication of x of z and h of z। ये मेरा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, दैट मीन्स इसको अब प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। सो पहला क्या करना पड़ेगा, x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन which will convolution with h of n, मेरा क्या आएगा x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n, ये आ गया मेरा एक सिग्नल, उसको अब मैं z ट्रांसफॉर्म करूंगा, z ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरा सिग्नल आएगा x ऑफ n मल्टीप्लाई विथ h ऑफ n, ये मेरा सिस्टम है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दैट इज x ऑफ n को मैं z ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो इट विल गिव यू x ऑफ z, यहाँ पे h ऑफ n को मैं कन्वोल्यूशन करूंगा, it will give h of n, then we will multiply this, multiply। ठीक है, it will give x of z into h of z। Okay, so now we have to prove this, so to prove any equation I have told कि मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज x ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ n, उसको सिंपल हम z ट्रांसफॉर्म के इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपली z ट्रांसफॉर्म के इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, नाउ अगेन ये दोनों को हम एक सिग्नल पकड़ लेते हैं दैट इज y ऑफ n, एंड एज पर कन्वोल्यूशन रूल दैट इज k equal to minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k। Remember this convolution, convolution formula, convolution formula। ठीक है, नाउ अब हम पुट करेंगे, एक के बाद एक वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। सो नाउ इसी का अगर हम z ट्रांसफॉर्म ले ले, तो z ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट योर z transform of x of n h of n। Okay, so now put the value, I will put the value, so z transform of this has some the formula n equal to minus infinity to plus infinity, okay, plus infinity to minus infinity,
यहाँ पे जो पोर्शन है उसी को हम लिख देंगे x of n h of n z to the power minus n from the convolution for z transform formula. Now this portion ये already convolution का formula apply होगा, so यहाँ पे क्या होगा n equal to minus infinity to plus infinity summation k equal to minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k and z to the power minus n. ओके, नाउ देखो अब इसको रीअरेंज करेंगे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k में से कौन सा n के ऊपर डिपेंडेंट है? टेल मी क्विक क्विक, कौन सा तुम्हारा n के ऊपर डिपेंडेंट है? कौन सा वैल्यू n के ऊपर डिपेंडेंट है? x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k के बीच में जल्दी बोलो कौन सा? जल्दी बोलो कौन सा? हाँ n minus दैट इज h ऑफ n माइनस k. सो उसको क्या करेंगे हम n माइनस k को n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में रखेंगे. ठीक है, नाउ अगेन रीअरेंज. माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x of k z to the power minus n minus k plus k. I can write this. So now, sorry, I can माइनस इंफिनिटी h of n माइनस k, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x of k z to the power minus n minus k into z to the power k. I can write this, sorry, z to the power minus k because plus k. So z to the power minus k. I can write this. So now rearrange. ये दोनों में से कौन सा तुम्हारा n के ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली दिस टर्म इज n के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको हम लिखेंगे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h of n minus k z to the power minus n minus k into k equal to minus infinity to plus infinity x of k z to the power minus k. देखो अब इसको कंपेयर करो, इधर एक इक्वेशन दे रहे हैं x of n z to the power minus n. x का फंक्शन और z का पावर कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ का फंक्शन और z का पावर का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ का फंक्शन z का पावर का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं h of z multiplied with x of z. So इसको हम अरेंज करके x of z multiplied with h of z. So hence it is proved. Hence it is proved. Okay, so that's how convolution properties is totally applicable for Z transform. Okay, and next is we have to find out the Z transform by using these properties. Okay, simply we have to find out the Z transform by using these properties. So now example, that is, find this kind of question actually you will get. Find Z transform
of signals x of n equal to 3 to the power n 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n u। So इसका हम z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेंगे x ऑफ n। सर थोड़ा स्क्रीन पर कीजिए ना, एक्सेंट का वैल्यू लिखना है। हाँ बोलो। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन नहीं लिख पाए। ये हाँ हाँ ये so देखो। now I have to find the solution. So before that I am writing the entire equation once again। 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n u। ये है मेरा x of n। Now z transform that is x of z डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। यहाँ पे x ऑफ n का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। सो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n un z to the power minus n। नाउ यहाँ पे देखो un है तो un का सिंबल कैसे होगा, n लेस देन 0 ये 0 रहेगा, n ग्रेटर देन 0 में ही इसका वैल्यू आएगा। तो ये मल्टीप्लाइड है पूरा इक्वेशन के साथ, ठीक है, ये पोर्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। तो ये पोर्शन का वैल्यू ओनली आई विल गेट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। तो नाउ वी विल गेट और आई कैन राइट n is 0 to infinity 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n and z to the power minus n। now इसको elaborate करते हैं, expand कर देते हैं, ठीक है। now n equal to 0 to infinity 3 into 3 to the power n z to the power minus n minus n equal to 0 to infinity 4 into 2 to the power n z to the power minus n। ये हो गया मेरा इंटायर एलाबोरेशन, ठीक है। नाउ इसको हम थोड़ा अरेंज्ड वे में लिखते हैं। n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 3, ये 3 तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट है, ये 3 मेरा कांस्टेंट पार्ट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, सो आई कैन पुट इट आउटसाइड। n इक्वल टू 0 टू इंफिनिट 3 into z to the power minus 1 to the power n, आई कैन राइट माइनस, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट पार्ट है 4 n to the power 0 to infinite, so 2 into z to the power minus 1 to the power n, I can write। ओके सो नाउ हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं r टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 by 1 minus r। एम आई राइट, एम आई राइट। पावर सीरीज r plus 1 plus r square plus r cube plus r4 up to r to the power n, yes or no? Yes sir। Okay, so now compare this। so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1 by 1 minus ये r होगा
तो 3z टू द पावर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1/1 माइनस 2z इनवर्स, ठीक है, बाय r। तो नाउ सॉल्व दिस। So 3/1 minus 3z to the power minus 1 minus 4/1 minus 2z to the power minus 1. Now simplify this. So 3z, z minus 3 minus 4z, z minus 2. That is the solution. X of z equal to 3z, z minus 3 minus 4z, z minus 2. That is the Z transform of the signal. But there is a problem. Problem क्या है? My Z transform question solution is totally incomplete except Z transform is totally incomplete until and unless I will provide the boundary. I will mention the ROC. Now how to find out the ROC? ठीक है, ROC कैसे फाइंड आउट होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ROC कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। सो नाउ ROC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो न्यूमरेटर पार्ट है, इन दोनों को इक्वेट टू जीरो, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट है, ये दोनों को इक्वेट टू जीरो करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट केस z माइनस 3 मॉड ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो इसके वजह से क्या होगा, मॉड z ग्रेटर देन 3। नाउ सेकेंड केस क्या हो रहा है, z माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन 0, सो मॉड z ग्रेटर देन 2। सो देखो दो आरओसी मिल रहा है, एक 3 से बड़ा है और एक 2 से बड़ा है। जो ग्रेटर देन 3 है दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, ठीक है, यस और नो। अगर तुम अपने छोटे भाई से, ठीक है, या छोटे भाई बहन से 3 साल के बड़े हो, ठीक है, तो तुम छोटे भाई से भी जिसका वैल्यू लो है, ठीक है, उससे भी तुम ऑब्वियसली बड़े होगे। तो आई कैन कंसिडर ओनली 3 दैट इज ग्रेटर देन 3 ऑल्सो इंडिकेट्स दैट मॉड z इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। सो इट्स ROC इज mod z greater than 3. So entire actual answer is x of z equal to 3z, z minus 3 minus 4z, z minus 2 and ROC mod z greater than 3. So that is the exact answer. Now you will get the full marks. Okay. So यहां तक सबको समझ में आया? एनी डाउट? यस सर। कोई कंफ्यूजन? Any confusion? If no, then again I will give you another assignment. ठीक है, x of n equal to a to the power n minus 1 u of n minus 1. Find the z transform. Z transform. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि ROC निकालो, बट यू हैव टू फाइंड आउट द ROC। तुम्हारे क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा ROC निकालो, ठीक है। और एक मैं छोटा सा ट्रिक तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 3 into 3 to the power n, 4 into 2 to the power n. So 3 into 3 to the power n, ये ट्रिक है। इसको तुम अप्लाई कभी करोगे जब तुम z ट्रांसफॉर्म में मास्टर हो जाओगे, मतलब यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग z ट्रांसफॉर्म। सो मेरा क्वेश्चन क्या था, x of n इक्वल टू 3 into 3 to the power n un माइनस 4 into 2 to the power n un। ये मेरा आंसर था क्वेश्चन। नाउ देखो इसका सॉल्यूशन क्या आया, 3z 1z minus 3 minus 4z z minus 3। नाउ अगर 3 और 4 कांस्टेंट टर्म है
है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 3n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या आया, z बाय z माइनस 3, ठीक है। और वहीं पे मेरा 2n un का z ट्रांसफॉर्म कितना आया, z बाय z, सॉरी ये z माइनस 2 होगा, z माइनस 2। तो देखो ये वैल्यू अगर यहीं पे अगर मेरा an रहता, un रहता, तो क्या आता, z बाय z माइनस ए, और यहीं पे bn un आता तो क्या होता, z बाय z माइनस b। तो देखो एज पर my calculation to find out z transform, whatever value is given of a doesn't matter, n यहाँ पे होना चाहिए टू दी पावर n और un होना चाहिए, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, z बाय z माइनस a। अगर यहीं पे मेरा 3 इंटू 5 टू दी पावर n un देता तो क्या होता, डायरेक्ट z 3z z माइनस 5, और यहीं पे अगर 4 इंटू 7 टू दी पावर n un देता तो क्या होता, डायरेक्ट z बाय z माइनस 7, 4z बाय z ओके सर। माइनस 7, ठीक है। सो दैट इज द ट्रिक, ठीक है। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म, दिस मेथड ऑब्वियसली यू विल नॉट फॉलो बिकॉज इट विल टेक मैक्सिमम 1 or 2 minutes, बट इफ यू practice z transform more and more, equation related z transform related equation more and more, then obviously after seeing the equation you can find out the z transform by yourself, ठीक है। so that is the ओके सर। main trick, or that is the main procedure to find out the z transform within a second, ठीक है। obviously you will not follow, I suggest not to follow the this procedure for now, ठीक है। और एक्चुअली इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है 1/1 माइनस 3z इनवर्स, दैट मींस 1/1 माइनस a z इनवर्स, इन दिस फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a के बदले 5 हो तो 5z इनवर्स, 6 हो तो 6z इनवर्स, 7 हो तो 7z इनवर्स, सर हम लोग डायरेक्ट जेड बाय जेड माइनस ए लिख सकते हैं ना? हाँ बोलो। तो जो आप लिखे हैं 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। हाँ ये चीज में लिख सकते हो, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से, ये सिंप्लीफाई मैं ये ओके कम, सिंस मेरा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आया, मेरा जो सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में आया, इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में तुम लोगों को समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके सर। ओके, सो एनी डाउट, इफ नॉट देन आई विल कंक्लूड द क्लास, ओके। सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, नहीं सर। हाँ z इनवर्स तो z इनवर्स वही इक्वेशन से आया, ठीक है। ओके, सो रेज योर हैंड एंड लीव द क्लास इफ यू हैव नो डाउट्स, रेज योर हैंड एंड लीव द क्लास, raise your hand and leave the class if you have no doubts or you don't have any doubts, okay, leave your hand and raise your hand and leave the class। सर हैंड राइज करने क्यों बोल रहे हैं? बोलो बोलो, okay, and leave the class, raise your hand, leave the class। So rest of 5 have some doubts, or there is a technical error, technical glitch, or you don't, you have any doubts? Deepak, Afridi, Avinash, Richika, Shubhashish, have you any doubts?
Okay, I'm going to conclude the class. Thank you.